Hello, good evening, namaskar, swagat. We are live on Music Veranda Facebook page. Yet another evening of learning, of sharing, of entertainment, of joy, and of living in now. So we all have heard, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. A very, very famous quote by Mahatma Gandhi. And today we have Amit Nagpal, who is a proponent of the above ideology. He talks at Music Veranda on this. And Amit, a big welcome to you. Amit is a sunshine person, is a Thank leadership you. coach, author, and industry veteran. His amazing, his Amazon bestseller hints at his impact. So let's have the show live and a warm welcome to everyone. सारे श्रोताओं को सभी को बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. I'm Anila Rampuria from Delhi, welcoming all to Music Veranda. जितने भी लोग जो Zoom मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और जो आगे इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे. So Amit, you can say a quick hi and then I can introduce people. I can say a little about Music Veranda. Over to Amit. Okay. Well, thank you so much for having me. Namaste, good evening, good afternoon, good morning, whichever part of the world you're watching this from, or when you get to see this recording. So my greetings from Pune. So अमित, म्यूजिक वेरांडा के बारे में मैं थोड़ा सा सभी लोगों को बताना चाहूंगी. म्यूजिक वेरांडा एक पहल थी जो कारवा बन गई है. बहुत सारे म्यूजिक लवर्स, लाइफ लवर्स की पहचान बन गई है. ये कारवा शुरू किया था हमने 6 अप्रैल 2022 when times were very difficult and we wanted to heal the world through music, sharing and connection. And now अभी हमारी एक आदत बन गई, एक खूबसूरत आदत बन गई है. हम लोग रोज मिलते हैं शाम को 9 बजे से 10 बजे तक, गपशप करते हैं, गाने गाते हैं. And we just share, we live in the moment. So Amit, we were talking, Amit is a classmate of mine. हम लोग स्कूल में साथ में थे और I've been following you on social media and I'm seeing your achievements and you are so inspiring, and especially your launch of book I was really excited. मैंने बोला हमारे क्लास का बंदा क्या book author कर रहा है, he's doing so well. And I'd been wanting that I invite you at Music Veranda, but it could not happen. But lately I and Amit, we were working on a project together, and he's such a humble person. He's been an industry veteran. He has worked in world's best corporates, but still he's so cool. He lets life flows. He's a learner. He watches everything. He's an observer. So Amit, I wanted that these traits I should be sharing it with other people also, so that they can also get inspired. But लेकिन आज टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं I think we should start it with the Saraswati Vandana. So I've invited Ane. Let me see if he has joined or not. Ane, are you there? Hello, Ane. Yes, Ane is a young rock star of music. Yeah. Ane, can you sing Saraswati Vandana for us? Sorry to interrupt you, folks. I guess what we need to convey to all our participants, अपने mics को mute पे रखें, right? जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो mute पे रखें. That's the request. Yeah, there are a couple of people who are mics are still on. Yeah. Thank you. Thank you for that. Yes. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे. मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. Thank you. Beautiful. Thank you, Ane. Thank you so much for this. And Amit, such a brilliant start. Saraswati Vandana से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें. और मैं Amit, I'm very happy to share that Devi Daji is there in this program, who is a filmmaker of Masoom, Ardha Satya, and many such movies, and he's also interested to take some insights from you. So here we go, Amit. कुछ अपने बारे में बताएं, वहां से और यहाँ तक, तो स्कूल का सफर से और यहाँ तक आपका रहा है. So, thank you. सबसे पहले बहुत धन्यवाद अनिला. और द म्यूजिक वेरांडा मैं आप सबको फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, कोविड टाइम से.
I think music is a great healer, and what you are trying to do to connect to the masses through technology, through the daily renditions that you bring in, I think that's amazing. So I'm quite pleased to be here. Thank you so much. और with the STEAM audience, आपने देवीदत्त जी के बारे में बताया, गुरुदत्त जी के भाई हैं, तो मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे अच्छे ऑडियंस में लोग आए हैं, और 2000 से ज्यादा आप लोग बोल रहे थे कि आपके दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं, अलग अलग रूप से वो इस म्यूजिक वेरांडा को अपने साथ एब्जॉर्ब करते हैं. सो दैट्स वंडरफुल. In terms of my story, it's a story which is I sometimes get amazed. You know, I believe in miracles, and I know a lot of you folks would believe in miracles. So I come from a very humble background, a very small town, like, you know, Anila, you and I spent so many years in Agra. So Agra is where I was born, and a wonderful city. But besides best schools and colleges, it didn't offer me an employment. So I had to move out of Agra really quickly after my graduation. And the financial situation at home was not very good. So I really had to take quick decisions to take up a job for myself. And I'm lucky that I got into a good organization, GSK. We call it GSK now. In those days, we used to call it as Glaxo. So I started as a medical rep, though I wanted to become a doctor. बट वो सामने शीशा नजर आ रहा था कि बॉस आप तैयार नहीं होगी इसके लिए, काम पर लग जाओ. जो हाथ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो. एंड आई थिंक ग्लैक्सो जर्नी वाज अमेजिंग. डॉक्टर तो नहीं बना, आधा डॉक्टर बना दिया उन्होंने, बिकॉज ऑफ lot of complex medicines, very, very expensive medicines, and we were trained by doctors. We were, we had to sell, we had to speak the language of the doctors. We had to speak the language that they could understand and relate. And about 7 years with Glaxo, then I moved on to joining NIS, which used to be 100% subsidiary of NIT. Now I think it's being absorbed by Reliance. It went to Airtel, Bharti, then Reliance. So training mein tha main 2 saal at NIS in Delhi. And subsequently, I moved on to joining the IT revolution in our country. आप सबको पता होगा 90s में, late 90s में काफी changes आए थे हमारी country में, हमारे देश में. तो I think I was one of those lucky people and bold people to have taken that step. IT के बारे में कुछ नहीं पता था, and उसमें घुस जाना non-engineering background के साथ, non-MBA background के साथ, but a lot of learning. So G was one first BPO organization that I joined. पहले इनको BPO बोलते थे, फिर पहले कॉल सेंटर्स बोलते थे, फिर BPO, अब BPM, बिकॉज काफी इवॉल्व हो गई है इंडस्ट्री पिछले 25 सालों में. We do a lot of cerebral work, analytics, HR analytics, and a lot of other good things that we do, legal process outsourcing. So G was one such large organization. आप सबको पता ही है कि it was at one point of time the world's most admired company, and Jack Welch, the celebrated CEO of G. So 2 years with G, and then subsequently moved on to SpectrumMind, which was another startup. In those days, we never used the term startup, but it was a brand new company. And I joined Mr. Raman Roy, who had set up G, and I followed him like the rats of the Pied Pipers of Hamelin. So Raman grew the business. We all worked together, and eventually we got acquired by Wipro. And that's how I moved to Pune, from Delhi to Pune. So Mr. Premji, we all know, is a great philanthropist, and what a wonderful person. So when he purchased SpectrumMind, when he bought us, he was not very sure whether IT and BPO can coexist. So it was an experiment. So he told Raman that, send me a guy who can help me set this up in Pune. और पुणे उस टाइम 2002 में जो लोग पुणे से हैं या पुणे को फॉलो करते हैं, कुछ भी नहीं था. बहुत रिटायरीज होम टाउन माना जाता था, रिटायरीज टाउन माना जाता था, हिल स्टेशन. एंड सो इन्फोसिस, पुणे, विप्रो, टाटा टेक्नोलॉजीज, इन सब के छोटे छोटे सेंटर्स थे. सो आई गिनी पिग की तरह मुझे रमन ने बोला कि जाओ आप 1 साल के लिए. मैंने कहा अभी नया घर इधर मैंने लिया है DLF में, मेरा बेटा अभी DPS में उसका एडमिशन हुआ है, वाइफ की जॉब लगी है अभी DPS में, सब छोड़कर कैसे मैं करूं. ही सेड नो, जस्ट गो एंड
मिस्टर प्रेम जी को दिखाना है कि दिस कैन बी डन टुगेदर। और तो वो कहते हैं ना, दहेज में आया था मैं, वो जो शादी हुई विप्रो और स्पेक्ट्रा माइंड की, तो मुझे पैक करके पुणे भेज दिया 1 साल के लिए। बट वी आई केम हियर इन 2002, बट विद इन अ ईयर वी फेल इन लव विद द सिटी। बहुत खूबसूरत सिटी है, आप सबको मैं इनवाइट करूंगा जब भी आपका मौका लगे इस जगह है। और सो आई बीन हियर सिंस 2002, फैमिली 2003 में आई मेरे साथ। तो विप्रो में मैंने टोटल 6 साल काम किया इन दी ऑपरेशंस इन आईटी सर्विसेज, and then I spent about 10 years with Infosys. That's where I spent maximum number of years. So I've been managing operations. I'm a healthcare guy. I've managed variety of businesses, right from healthcare to back offices of American Express credit cards, technology support, telecom, all kinds of businesses. And that's the beauty of a BPO business. It allows you, with one organization, you can work with multiple clients. मेरा ट्रेनिंग में हमेशा रुचि रही है, और लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव मैनर में। सो इस हुनर को मेरे बहुत साल पहले एनआईएस ज्वाइन करने से पहले मिस्टर राजीव गुलाटी, इलाई लिली रेनबैक्सी के सीईओ थे, उन्होंने मेरा इस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया एंड ही सेड, नो अमित, आई बिलीव यू शुड बी फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग। एंड इवेंचुअली आफ्टर मल्टीपल careers in business management and operations management, मुझे finally full-time training की opportunity मिली Infosys में. So in 2010, I became the head of learning for Infosys BPM, and I was managing 33 centers across the globe from a training perspective. Mysore में Infosys का बहुत बड़ा campus है, 400 acres, 10,000 students, मतलब employees पढ़ सकते हैं वहाँ पर. So it was a big responsibility, huge responsibility. So 2016 तक मैंने काम किया, उसके बाद मैं 2017 से अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। मेरी फर्म है परसूटिका के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है परसूट, क्यूरियोसिटी एंड एक्शन, एंड दैट इज माय लाइफ क्रेडो। आई डू कोचिंग, आई डू ट्रेनिंग फैसिलिटेशन, आई डू HR consulting assignments, and of course I write books, and I'm an author, and that's pretty much about me. मेरी तो छोटी सी एक स्टोरी यही है कि एक मेडिकल रेप सामान्य एजुकेशन को लेकर, MBA भी पूरा नहीं कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग नहीं करी, नॉट दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम अ ड्रॉप आउट ऑफ SIBM पुणे, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। बट द पॉइंट इज के even with small means, limited means, average student, if from a medical rep I could become a learning head, मेरा जिंदगी का जो लेगेसी जो मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो यही छोड़ के जाना चाहता हूँ कि सरस्वती को फॉलो करो एंड लक्ष्मी विल फॉलो यू, राइट? सो बेसिकली द पॉइंट इज invest in your learning, and I think that's the topic of this discussion. Over to you, Anila. लगता है कुछ तकनीकी वो दूरदर्शन में बोलते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है। तो तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। Sorry, Amit. Sorry. There was some technical problems. I was just trying to sort it. Yeah, I would again request, though I can make people mute, but यदि आप mute पे नहीं हैं, because it distracts me, I have to just focus on who's not on mute. So just mute yourself. Yes, to make this conversation smooth. Okay. So Amit, yes, we are talking on learning. So yes, so let's elaborate on this subject itself, learning, how can it help somebody to be a constant learner? और आपने जो अभी अपनी स्टोरी सुनाई ना, ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है। Like it has been such a beautiful, such a very interesting journey, very entrepreneurship journey. But the way you have quoted it, it's like it's sounding so fun. So that's what makes it so interesting. Thank you so much, Amit. Over to you. Yes. वो एंड रिजल्ट सबको अच्छा लगता है जब शेफ सब्जी बनाकर, बढ़िया सी डिश बनाकर, क्या बात है, उसके पीछे जो मेहनत जाती है, वो किचन में ही पता चलता है कितना पसीना बहाया जा रहा है। सही बात। तो इंटरेस्टिंग जरूर है ये लाइफ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मेंटोर्स, टू माय टीचर्स। आपको तो पता है सेंट जॉर्जेस में धर्म सेवक सर, कामल मैम, कितने अच्छे हमारे टीचर्स थे। So I'm very thankful to
to a lot of mentors and people who have supported me in this journey. तो लाइफ इजी नहीं रही है. तो जो लोग खास करके यंग ऑडियंस है जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे या लाइव सुन रहे हैं, आप किसी को भी देखिए जिसने भी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करी है, कहाँ पर कहीं पर भी पहुंचा है, इट्स बीन it's never easy, yeah. But if you are surrounded by good mentors, if you are curious, वो बोलते हैं ना पात्र बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा वेसल होगा उतना उसमें आप कुछ डाल सकते हैं, कुछ भी लिक्विड, हल्दी का, कुछ भी आप मैजिक पोशन जो बनाना चाहते हैं. सो यू हैव टू स्टे क्यूरियस. जैसे मैं बोल रहा था मेरी फर्म का नाम है परसूटिका, तो मेरी लाइफ सारी परसूट से रही है कि हाउ कैन आई लर्न दिस बेटर. आप मुझे बताइए रजत, आप कैसे निटिंग मशीन्स को इतना अच्छा चलाते हैं, कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं अपनी आप चीजें. नीना, आप बताइए आपका क्या काम है. सो बेसिकली आस्किंग पीपल, सीकिंग हेल्प फ्रॉम देम, क्यूरियस रहना, एंड उसके बाद क्यूरियोसिटी नहीं, एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है. कुछ लोग बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं, उनको ईश्वर ने दान दिया है, वोकल कॉर्ड्स अच्छी दिए हैं, लॉट ऑफ they can speak very well eloquently, but when it comes to action, like we say in English, when the rubber hits the road, they just run away to another model. So I think action is very important. भगवान कृष्ण जी हमें सिखा रहे हैं, सिखा के क्या गए हैं, मैं माफी चाहता हूँ, सिखा रहे हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो सिखा रहे हैं कि कर्म करो और फोकस करते रहो अपना. और it's that's pretty much I would want to say at this time. I'll follow your lead. आप जिस दिशा में मुझे ले जाएंगे मैं. So yes, so like से पता चलता है that you have a passion for learning, and so I would like to understand invest in learning. I've been talking to you and you have been saying invest in learning. So Yeah. how can we invest in learning? Because वो mindset नहीं है. Yeah. कि अभी like if I have two options, maybe to engage in a workshop or to buy something, I Yeah. still am lost in that decision making. So Yeah. please help A me. lot of us, and it's human, Anila. It's human. We are. मैं बोलता हूँ this is a tsunami of data. We are overwhelmed with so much of information around us. We really don't know what information to pick up, right? Social media, Kindle books, audio books, Google, you name it, and now we are talking about Chat GPT and AI and so on and so forth. I'll give you a story. I'm a storyteller. 2010 में जब मेरा Infosys में promotion हुआ to getting into Infosys का training head के लिए, so I was in a Jaipur guest house, काम के सिलसिले में गया था नीना के शहर में. और so I was reading a newspaper, Economic Times, सुबह का नाश्ते का टाइम था. So I suddenly, आमिर खान को कौन नहीं नोटिस करेगा. So there was an article on Amir Khan, and this Economic Times correspondent was asking him in that article, saying, hey, Mr. Khan, there are so many contemporaries like Akshay Kumar, like Salman Khan, Shah Rukh Khan. Every Eid, Diwali, or some occasion, they come up with a movie, and within few weeks it becomes 100 crore club. So why are you not a part of that 100 crore club? Why do you come with just one or two movies? So Amir Khan's response was, and I quote him, he says, I follow the path of Saraswati. When I follow Saraswati, Lakshmi follows me. But if I only follow Lakshmi, both will leave. I still have goosebumps when I talk about it because it was a tipping point for me. And I said, wow. And I started doing some research around it. And I'll give you another story. So जब मैंने research करी तो देखा ओम पुरी, जो हमारे कितने खास एक्टर थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बहुत खूबसूरत एक्टिंग करते थे. जब उन्होंने शुरुआत करी, when he started his acting career, there was this movie called City of Joy. There was a French writer, Dominique Lippert, if I'm pronouncing him correctly. But that's not the point. So this gentleman, Om Puri, was supposed to be a rickshaw puller in Kolkata, in the city of Kolkata, humid weather, heat mein. And so the director told him, okay, the shooting begins from tomorrow. And he says, no, sir, I'm not ready for the shooting. He says, why? Because, sir, I'm a Punjabi guy. I enjoy my drinks. Meri choti si paunch bhi hai. Look like a rickshawala.
right? So the director said, what do you intend to do? He says, मेरे को आप कुछ दिनों के लिए रिक्शा खींचने के लिए बोलिए, allow me to do that. And the director was also a method director, and Om Puri had just come out of his acting school, and he actually pulled rickshaw for days. I wouldn't know, weeks or days, whatever it is. The point is, the moment his rib cage became visible, he says, rickshaw wala bhukha hota hai, garib hota hai, wo meri tarah nahi lag raha. So the moment his rib cage came out, then he went to the director and said, I'm ready for my shot, sir. Another story, Shabana Azmi, उनको मंडी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, आप काफी लोगों को पता होगा. She literally lived with prostitutes, lived with them to understand what is their pain, what do they go through, what is the language they use, why do they use a certain language, what kind of clothes they wear, right? So that she could, embody them. और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको सरस्वती का काम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? It's a learning in a different form. So Amir Khan भी यही करते हैं ना? For all the movies, he changes his character, he embodies that character. Dangal के लिए कितना सारा उन्होंने weight gain किया, right? For Gajni, he had an 8-pack instead of a 6-pack, right? So he does all kinds of things. He reads his characters. अब उनको follow करते हुए कितने सारे actors हैं जो method actor बन गए, right? So the point is, अगर आप, if you do not immerse yourself in whatever career that you've chosen, अगर आपने hair cutting salon खोला है, तो you should become the best hairdresser of the town, the best hairdresser of the city, the best hairdresser of the state and the country. And I know one such person who now, L'Oreal calls him whenever they launch a shampoo, they invite him, and this guy just, he's in demand. So the point is, invest in your learning. The issue that I see here, I mean, I have a 26-year-old boy, man now, and a 17-year-old girl, and I interact a lot with youth. For my work, the point is what I get to see, and it's a very generalized statement that I'm making. The conversations are all about Mahalakshmi. Tera package kitna hai? Where do you live? कौन सी कार चलाते हो, right? कौन सी घड़ी है, right? The point is, it's all good. जरूर aspire करो, aspirational होना बहुत जरूरी है, but उसके लिए instant gratification मत मांगो, Maggi noodles की तरह. Life is not a 2-minute Maggi noodle. You have to beat the coffee to enjoy the coffee the most. Good baristas, they take time to create a beautiful cup of coffee for you, aroma in the coffee. So in the same breath, I say, I also see a lot of youth. I also see a lot of people, young people who are following that path. So I have a very balanced view. The folks who are not following that path, my appeal to them is, it's time for you to make a change. The world is changing. The world is, like a quicksand. अगर आप world के साथ नहीं रहोगे, if you are not aligned with what the world requirements are, you will be out of the game. Then don't blame, don't curse, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, right? उसको तो उसका पैकेज ये हो गया, उसको सुंदर बीवी मिल गई, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ. I mean, don't complain then, right? So if you aspire to be the best actor, if you aspire to be a best leader, you aspire to be a best author, you have to go through the path of Saraswati. And the path of Saraswati is never easy. And it will never be easy because you will not value it at the end of the day. So when you sweat out, the enjoyment is the most. Look at Dhoni, look at Dravid, look at all these, the amount of hours they spend on the field, and yet they are laughing because they enjoy what they do. Yeah. So when you love what you do and you do what you love, you start investing. फिर ये questions नहीं आते, मैं flickery mind हूँ, ये book कहाँ मिलेगी, वो कहाँ होगा, where to start. आपको रास्ते खुलते जाएंगे. My success rate of seeking help is 80%. 10 लोगों को मैंने मिला, मेरे को help चाहिए, 8 लोगों ने help करने को तैयार. It's a good strike rate, isn't it, Anila?
दो लोग Beautiful, आपको मना lovely. करेंगे, 2-3 लोग तो they don't like you. उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, वो किसी और उलझन में है, राइट? So that's what I would want to say. Yeah. Thank you. Wonderful, wonderful, beautiful explanation, Amit. And मेरे को वो भी आपका explanation बहुत अच्छा लगा था. I would like to remind you to share that सरस्वती fund वाली चीज. मुझे बड़ा अच्छा लगा वो. There's a phrase in English called walk the talk and talk the walk, right? So if you are saying something, if you are not following that, then shame on you. As simple as that. And intelligent people like all of us on this platform and everywhere, within nanoseconds, they can find out whether you are an authentic person or gas. बोलते हैं ना gas है इसमें, right? So अगर मैं सबको बोलता हूँ सरस्वती को फॉलो करो, तो अगर मैं खुद नहीं फॉलो करूंगा तो लानत है. So एक ऐसी आमिर खान को फिर से मैं थैंक्स करूंगा फॉर द ट्रिगर. तो मैंने बोला कि इन्फोसिस, अब मैं लर्निंग टीम में हूं, तो मेरे को और अपग्रेड करना है अपनी स्किल्स में. आई हैव टू डू अ लॉट मोर. एंड see, a lot of us in the business side say my company doesn't invest in learning. I want to do this, but there are not enough learning programs. Your organization will offer you what works for them, what will help them. It is their agenda, not your agenda. You're part of that agenda. So there are certain programs that they will offer you, which are good for you. And there are certain things that you want to do in life, which is, let's say I want to learn music. Now, Infosys is not going to teach you how to learn or sponsor your music learning exercise, right? Or a knitwear company is not going to fund your education on that. So what I did was I started creating what I call as a Saraswati fund. Mera ek HDFC bank hai yahan par, so there's one account. And what I did was I call it as a Saraswati fund. So every time I used to get a bonus or a Diwali bonus or a variable pay promotion hua, I would park some amount of money into that fund so that I don't depend on my organization, on my leaders for anything and everything, because it is my personal agenda. So what happens is वो पेन थोड़ी कम हो जाती है. कुछ कोर्सेज के लिए ऑफिस स्पॉन्सर करता था, कुछ कोर्सेज के लिए मैं करता हूँ अपने आप को. तो जो मैं बुक्स खरीदता रहा हूँ, यूनिक बुक्स, यूनिक ऑडियोज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, कुछ सरस्वती फंड से आए, कुछ ऑफिस के फंड से आए, राइट? सो जैसे हम तैयारी करते हैं, नई बाइक खरीदनी है तो पहले से पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट नई कार लेनी है, नया घर लेना है, राइट? नॉट ऑल ऑफ अस हैव are wealthy, so we budget for it, we plan for it, right? So same way, why don't you plan for learning? Yeah, so that's the fund all about. Yeah. Awesome, awesome. Very nice. और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बोल रहे हैं म्यूजिक वरांडा में आए, म्यूजिक तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ नाम का म्यूजिक वरांडा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अब म्यूजिक करना चाहिए. तो हाँ, एक गाना क्योंकि म्यूजिक वरांडा में हम लोग यही करते हैं, बातें करते हैं, गाने गाते हैं, उस गानों से और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल हो जाती है. और बार बार हम लीना की बात कर रहे हैं. नीना, शी इज अनदर वेरी इंस्पायरिंग क्लासमेट ऑफ आवर्स. शी लिव्स इन जयपुर and she's a very beautiful part and integral part of Music Veranda. When I started Music Veranda, I invited Neena, and since then she's a part of Music Veranda. So Neena, over to you. अमित के बारे में कुछ बोलना है, कुछ गाना है? नहीं, गाना गाते हैं, गाना. Okay. Hi, good evening everyone. Hello Amit. Hi Neena. Wonderful listening you for the first time. हम इतनी क्या कहना चाहिए अनिला, ज्ञानवर्धक बातें बहुत ही अच्छी लग रही है. And see, you will be happy. I've got your book, Amit. Thank you. Wow. The only thing is, as I told you, मैं बहुत I'm a very slow reader, तो अभी थोड़ी सी पढ़ी है, but it's amazing. I mean, whatever I've read, बहुत ही motivate करती है, और it's a very interesting book. बहुत अच्छी book है, and congratulations to you. Thank you so much. Thank you. I'm really enjoying it, no? You're reading, और अभी आगे और पढ़ के फिर बताते हैं. Amit is a wonderful human being. जैसे भी अमित ने अभी सब बातें बताई, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं अमित. I mean, बच्चों की हेल्प करना और उस तरह का. अनिला, you must be knowing ना? Yes, Amit is too modest to share it, so let me share it.
कि उनकी जो हाँ, बुक है please कि share. इट्स एन Amazon बेस्ट सेलर, और जो भी रॉयल्टीज आ रही हैं, so he's using them for underprivileged children. Oh, so that's a wonderful initiative. Congratulations, Amit. Thank you so very much. World needs more people like you. So, Yeah. Nina, over to you. Yes. तो उसी से पता चलता है कि अमित कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छे ऑथर तो वो है ही, इतना बढ़िया उन्होंने बुक लिखी हुई है, लेकिन इंसान भी उससे बढ़कर है. सो फॉर हिम एंड फॉर एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम जस्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग. उड़े खुले आसमान ख्वाबों के परिंदे, उड़े हमें ख्वाबों के परिंदे, क्या पता जाएंगे कहाँ, कहीं नजर लगता है अब जागे हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकल गए उनसे आगे हम, हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी. ओ हो, जो भी हो सो हो, उड़े खुले आसमान ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल की जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ये हुआ, फिरते हैं महके महके हम, खोइए कहीं बातें ये नहीं, जब है ऐसी बहके हम, हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए. ओहो अब तो जो भी हो सो हो, खुले खुले आसमान ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ला ला थैंक Wow. यू. Oh क्या my बात है. God, Nina, so beautiful. And I think just, apt for this show. Apt for this show. The song you've chosen. Very beautiful. Thank you तो so अमित, much. खुले आसमान के परिंदे, हम यही चाहेंगे तुम दिन दुगनी रात चौगनी करो और ब्यूटीफुल बुक्स लिखो. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Nina. That means a lot. And what an inspiring song. मैं काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ बॉलीवुड म्यूजिक से, सॉन्ग से. अगर अनिला आपके पास अभी, आई डोंट नो क्या फॉर्मेट आपका, कितना Yes, समय. yes, वो है हमारे पास, but I'm postponing it towards the end. अभी आपने जो suggest किया था वो मैंने अभी देखा, so we'll take it ahead and let me ask हमारे singers if they can help me with that because it's not formatted. हाँ, That's okay. तो हाँ अमित, yes, so जो आपकी book है ना, I really want to understand. Number one, I want to understand कि book, how do you inspire to write a book? Number one, and why that topic? Why that subject? जैसे मैंने बोला कि I'm a storyteller, so the life is all about, मैंने एक बहुत साल पहले किसी लीडर से सुना था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि सबने जाना तो है एक दिन, बट आपके पास आप कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज हो आपकी लाइफ की, खाली 9 से 5 की नौकरी और दैट शुड नॉट, लाइफ उसमें सीमित नहीं होनी चाहिए, राइट? वो जरूरी है नौकरी, बट लाइफ उसमें सीमित नहीं होनी चाहिए. So the message that I received from this gentleman was that you must have the benchmark of have you led a good life is how many unique stories have you lived and created for your grandchildren, for people who listen to you. And I didn't wanted to start as an author. I'm not a trained writer or anything of that sort, but I started documenting those stories. मेरे को काफी लोग
मेरे ऑफिस में फ्रेंड्स सर्कल में बोलते थे कि अमित आपकी इतने सारे किस्से होते हैं, राइट, एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट? सो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग ऑल ऑफ इट। ये 2014 में शुरू हुआ प्रोसेस मेरा, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 5.5 to 6 years to complete it, because travel बहुत होता रहा, ऑफिस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, डिस्ट्रैक्ट होता रहा, बट इवेंचुअली it's all about 33 short stories हैं, 200 पेजेस की बुक है, और हर स्टोरी के साथ कुछ लेसन है, और काफी फिर मैंने रिसर्च भी करी, 5 सालों में काफी टाइम मिला रिसर्च करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 200 लीडर्स आई मेट in person, over phone, over Zoom calls. Mr. Raman Roy, who's known as the father of Indian BPO industry, जिन्होंने इस BPO industry को इतना आगे पहुंचाया, he gave me 7 hours of his time. Right, so multiple, कभी मैं उनको गुड़गांव ऑफिस में मिलता था, कभी मैं उनको Zoom पे बात करता था, तो a lot of leaders gave me their time, and then I also hired a team of researchers, because again, I'm, like I said, I'm not a researcher, I'm a business guy. मैंने कोई statistics नहीं सीखा, कुछ नहीं, so I had to hire a researcher to help me collate that information. Academic researcher, काफी लोग बोलते हैं कि ठीक है आपका experience अच्छा है, but हमें मैनेजमेंट में तो ये सिखाया नहीं गया था, राइट? व्हाट मॉडल आर यू यूजिंग? सो आई हैड टू डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग, so I had to find out if they, whatever I did, whatever I learned over these 30 years, are there insights in the business books about that? So I had to hire an academic researcher who read on my behalf, and then she would come back and tell me, Amit, if you haven't read this book, you can't progress in life. So she used to focus and make me read certain books, read certain material, and some books she would say only this chapter is good enough. Don't go beyond that. Don't waste your energies, right? So that's how I created a team of researcher, a team of an editor, and then I also hired an illustration artist, Kasia. जब मैं कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहा था, 5 बार मैं गया लगातार 2017 से 18. So Kasia पोलैंड से है. So her husband works in Singapore. So she was part of my, जैसे अनिला आप और नीना मेरे कोर्स में रहे हो, तो ऐसी ही कासिया थी. तो she used to doodle after every session कि उसने क्या सीखा हम सब ने, summary. So I hired her, said, Kasia, why don't you help me with that? तो हर चैप्टर के बाद बुक समरी जो है, जो कार्टून्स है, इलस्ट्रेशंस है, वो सारा काम कासिया का है. तो ऐसे टीम जुड़ती गई और कारवां बनता गया. तो ये जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये these are all beautiful illustrations that she made. So a lot of people are visual. कुछ लोग घबरा जाते हैं, बड़ी मोटी बुक है, पढ़नी नहीं है, so thick नहीं होनी चाहिए, short होनी चाहिए बुक. दूसरा, कुछ लोग विजुअल से सीखते हैं, कुछ लोग एकेडमिक से सीखते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस से, स्टोरी से सीखते हैं. तो everything has been all learning styles. In training we call it as Bloom's taxonomy है, so we follow it कि learner जिस तरह से भी सीखना चाहे, आप उस तरह का उसको environment हो. So that's the whole idea, and that's how this book came up. And I'm glad COVID happened. I'm very glad. I mean, a lot of people will say कि ये क्या पागल आदमी बोल रहा है. Actually, it served as a silver lining in the dark clouds, because एक तो काम काफी कम हो गया, घर से काम करना शुरू हुआ, बिजनेस पे असर पड़ा. I started re-looking at my manuscript. I started re-looking at the book. तो अगर आप 2020 में मेरी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट देखते और अब देखते, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? सो और कुछ मैंने क्लासेस भी ली, हाउ टू राइट बेटर. दैट्स हाउ इट केम अप. अब ये है कि एक्सपीरियंस हो गया. अब दूसरी बुक जो आएगी उसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा, वो 2 साल में. और टॉपिक एलिफेंट एट द डिनर टेबल क्यों? उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी. अगर मैंने बता दिया तो आप उसका लुत्फ नहीं ले पाएंगे, मजा नहीं आएगा, राइट? ठीक है. वी डेफिनेटली. और मैं बताना चाहूंगी, कोविड, आपने बोला कि कोविड हेल्प यू, कोविड हैज हेल्प्ड अस आल्सो. सो थैंक यू टू कोविड, क्योंकि कोविड के कारण म्यूजिक वेरेंडा भी बन पाया, हम सब जुड़ पाए. सो हम लोग भी उस पागल क्लब में आते हैं आपके वाले. So Amit, another thing that I would like to
ask you is, आप बार बार ना, हम लोग कल जब प्री टॉक कर रहे थे, बार बार you were saying घाई नहीं करनी चाहिए, है ना? तो I since I have also done my management from Mumbai, so I have also heard that word quite a lot, but I forgot that word, you know. मुझे बड़ा intrigued हुआ कल आपने जब वो word use किया, घाई क्यों नहीं करनी चाहिए, घाई क्या होता है? महाराष्ट्र में मराठी में घाई करना मतलब जल्दबाजी मत करो, राइट? सो बेसिकली शुरू में जब मूव किया तो कल्चरल शॉक लगा कि द शॉप्स क्लोज इन द आफ्टरनून, दे हैव आफ्टरनून सिएस्टा। मैं दिल्ली में इतने साल रहा, यू नो, मुंबई, दिल्ली, you know, these are all business centers of our country, action oriented. And I would notice people, especially our gardeners and, you know, people around us, they will eat their lunch exactly at 1 o'clock. Offices mein aap jaiye, everybody opens their tiffin at 1 o'clock. Afternoon siesta, and you know, धीरे धीरे conversation करनी. Restaurants में मैंने देखा families की families जाती हैं, और सब खाने की तरफ सबका ध्यान के enjoy कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So mindfulness and all of that. So I used to literally laugh about it कि इतना slow कैसे हो सकता है? But the city got into me over a period of time. मैंने समझा इसको, और जो मैंने समझा वो एक्सपीरियंस से समझा, और हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो योगा को अडॉप्ट कर रहा है, वेजिटेरियन फूड को अडॉप्ट कर रहा है, they have understood in a very different way, and they call it as mindfulness, and we pay lakhs of rupees for their workshops to learn what mindfulness is all about, what patience is all about, connection is all about. So I think यहाँ की सभ्यता जो है वो काफी है कि कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं पुणे को. यहाँ पर काफी संत रहे हैं. पुणे का मतलब पुण्य धरती. तो यहाँ पे काफी संत तुकाराम जैसे रहे हैं, बहुत सारे, शिवाजी तो थे ही मराठा वॉरियर. तो बेसिकली व्हाट आई हैव लर्नड इज ऐसा. और पुणे देखिए आप, काफी साइंटिस्ट हमारी कंट्री के पुणे से हैं. आप यूएस में जाइए, आईटी प्रोफेशनल्स. तो ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट मेड अ मार्क, सॉलिड मार्क, राइट? अभी इस टाइम आप हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में जाइए, ऑलमोस्ट 5 lakh 6 lakhs jobs have been created out, you know, so it's a mini Silicon Valley after Bangalore of India. So मैं देख रहा हूँ ये सक्सेसफुल भी हैं और ये घाई भी नहीं करते, तो कुछ तो कनेक्शन है, right? And when we read you know, thinkers like Carl Newport, who talks about deep work, or Mihaly, the Russian scientist, psychiatrist, psychologist, I'm sorry, the Russian psychologist. And Mihaly says flow. So basically, आप जितने भी experiment, जितने भी आप initiatives देखेंगे, जो revolution हुए हमारी country में, जो revolution हमारे world में हुए हैं, जो भी नई नई चीजें आई हैं, वो घाई में नहीं आई. स्टीव जॉब्स ने कई साल लगाए एप्पल को बनाने में. He studied design. He you know, studied. He did meditation. He used to go for. उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो लंगर खाने पहुंच जाते थे, you know, ISKCON temple में. And he studied calligraphy and so many other things. जितने भी चीजें देखोगे ना, they are all, जिसको हम दमपुख्त बोलते हैं ना, slow cooking process. तो ये जितने भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, Infosys, Wipro, Dell Computers, Apple, you name it, they've all done things. It looks बहुत aggression के साथ है, but very thoughtfully done. और जो भी businesses, जो भी काम thoughtfully होते हैं, उसमें मजा भी आता है और आउटपुट भी बहुत अच्छी आती है. एक और वर्ड आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, effortlessly. अभी हमें हजारों साल से हमारी हिंदू सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता में effortlessly काम करो. तो ये सारी चीजें अब जुड़ रही हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं. So interesting, so interesting. I think leadership, you know, you are a leadership coach, or Hindu Sanskriti, Hindu Sabhyata se leadership, बहुत, you know, there's a very big connection. That's what I feel. Yeah. And leadership is just not about corporate. It's not a corporate world. It is a very integral word. Like it applies everywhere. Even mothers can use that. You know, leadership is a very 100%. vast. It's a very vast subject.
So Correct. thank you अमित. और नीना, कोई और गाना गाना है आपको? एंड देन अमित, जो आप गाना और अपने जो मैसेज का वो एक कॉम्बिनेशन है. वी हैव जरूर. सिंगर्स लाइक दिनेश जी, शांतना, सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट. So but first let Perfect. me check with Nina if she wants to sing something else for us. Hello Nina. Okay. I think she's preoccupied. So अच्छा अमित आप भी गाना गाते हैं, तो एक आपसे भी गाना हो जाए. म्यूजिक वरांडा में आए हैं तो कुछ तो सुनाइए. मैं yes. बाथरूम सिंगर हूँ. मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती हैं और How? उन्होंने Okay. तो आई थिंक वो ब्लड में थोड़ा सा, तो सुबह सुबह उठ के रियाज करती थी बहुत, अर्चना दीदी. और गाना गाने से पहले मैं थोड़ा सा ही गा सकता हूँ, मैं लंबा नहीं Go अभी. ahead. Go ahead, please. तो मेरी जो लाइफ को जो रिप्रेजेंट करता है वो यही है. व्हाट आई कॉल इज एज होलिस्टिक लीडरशिप, WHOLISTIC, होलसम. तो उसमें डूइंग और बीइंग दोनों चार पहिए हैं कार के. तो Yes. कर्म के दो पहिए हैं, दो पहिए पीछे धर्म के. बीइंग, जो मैं घाई ना करो, मीनिंगफुल काम करो माइंडफुलनेस के साथ. तो इस कार को अगर हम ज्यादा हवा पीछे वाले पहियों में दे देंगे तो कार फिर ऊपर हो जाएगी, अनस्टेबल होगी. ज्यादा काम की पहियों पे हवा भर देंगे तो वो उधर से अनस्टेबल हो जाएगी. सो एसेंशियली वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, राइट. सो जैसे आपने बोला, लीडरशिप घर पर भी होता है, तो मदर भी लीडर है, वाइफ भी लीडर है. अगर मैं घर में खुश नहीं हूं तो मैं ऑफिस में जाकर वो टॉक्सिसिटी फैलाऊंगा. तो इफ आई एम अ गुड लीडर एट वर्क, it's quite natural that you will be good husband, good daughter, good son, good wife, right? So होलिस्टिक होना है, राइट. और उसके लिए ये म्यूजिक वरांडा जैसी चीजें बहुत मैटर करती हैं. फॉलोइंग योर पैशन मैटर्स अ लॉट. हॉबीज, आप वेस्ट में जाइए. मैंने यूएस में काफी साल जाता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ. वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत काम किया मैंने, यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, एवरीवेयर आई हैव बीन. द पॉइंट इज, आप किसी भी जगह पर बात करें ना, तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि सो व्हाट एल्स डू यू डू ऑन ओवर द वीकेंड. So somebody is either hiking, somebody has joined a music club, somebody is good in chess, somebody is good in something else, photography. So they focus on other things also, and that's what makes them complete, right? So I want to, और हमें भी पता था ये, हमें हजारों साल पहले से पता है. इसीलिए इतने अच्छे राजा और इतने अच्छे प्रजातंत्र चलती रही है, राइट. क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो इन चीजों को फॉलो करते थे. होलिस्टिक लीडरशिप को हम भूल गए धीरे धीरे फॉर वेरियस रीजंस. द पॉइंट इज नाउ, तो जब मीनिंगफुल काम करते हैं आप, जब आप एंजॉय करते हैं अपने काम को, तो काम नहीं रहता. तो आप हंसते हंसते भी ना आगे लाइफ को बढ़ा सकते हैं. तो मेरा जो सॉन्ग है वो जो मैं याद कर रहा हूँ, चिराग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इन्फोसिस में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. वो भी म्यूजिक सीख रहे हैं, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लूंगा. तो ये गाना बहुत खूबसूरत लगता है मुझे. मैं गाना चाहूंगा, कुछ शब्द बोलता हूं, फिर आप साथ दीजिए. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. प्रेमानंद कितना खूबसूरत करते हैं. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. थैंक यू. थैंक यू सो मच अमित. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर, तो बहुत ही सुंदर. बर्बादियों से याद आया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब आशिक बन जाओ, बर्बाद हो जाओ. बर्बादियों का मतलब ये है कि गो थ्रू दैट फेज. मेरी बुक में एक चैप्टर है लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर सेइंग, पागल है तू, मिस्टेक्स के ऊपर चैप्टर क्यों लिख रहा है? कौन लिखता है अपनी मिस्टेक्स के बारे में? सो बर्बादियों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है. जो गलतियां आपने करी हैं लाइफ में,
उनके बारे में जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो सीख कैसे होगी? फेसबुक, आज फेसबुक नहीं होता, मार्क जुकरबर्ग बहुत अलाउ करता है एक्सपेरिमेंटेशन। आई थिंक दे सेलिब्रेट फेलियर्स ऑल्सो। कितने फेलियर हुए, कितने एक्सपेरिमेंट फेल हुए, राइट? सो दैट्स व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ वाइब्रेंट। तो हमें खूबसूरती इनपरफेक्शन में ढूंढनी है। ये जो फेयर एंड लवली की एड्स देख देख के हमारे बच्चे बड़े हुए हैं ना, और आपके पास अगर सुजुकी कार नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, राइट? तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने, मार्केटिंग कंपनीज ने एक ऐसा मेंटल बायस हमारे में कर दिया है कि हमें हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं। जब तक मैं फेयर एंड लवली नहीं लगाऊंगी, मैं गोरी नहीं बन सकती। जब तक मैं डाइट कंट्रोल करके ये नहीं करूंगा, ये वाला म्यूजेली नहीं खाऊंगा, केलॉग्स के ये नहीं खाऊंगा, तो ये नहीं होगा। सो उससे क्या हो गया है कि कंपटीशन बढ़ गया आपस में। तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम, इसका मतलब फेलियर हो। सो बेसिकली हमें इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, जहां अगर कोई चीज टूट जाती है, उसको हमारी तरह हिंदुस्तानियों की तरह फेंकते नहीं है, राइट? बट व्हाट दे डू इज बेसिकली, उस चीज को, जैसे कप टूटा, उसको जोड़ दिया, उसमें चाय नहीं पियेंगे, बट उसमें फ्लावर पॉट बना देंगे उसका। बेसिकली इट्स अ मैसेज टू देमसेल्व्स कि हम सब इम्परफेक्ट हैं, बट उस इम्परफेक्शन में भी हम कुछ खूबसूरती निकाल सकते हैं कि नहीं। सो दैट इज रियली हिट मी हार्ड। आई मीन, जितना मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में जाता हूँ और ऐसी ही कन्वर्सेशंस में जाता हूं, जहां पर ये नहीं है कि मेरे को ही सब कुछ पता है, बहुत सारे लोग हैं। आपको वही मैं बात कर रहा था कि पात्र बड़ा होना चाहिए। मैं दिनेश जी से भी कुछ सीख सकता हूँ, आपसे सीख रहा हूं कि कैसे लाइव सेशंस करने चाहिए, राइट? नीना के अंदर अलग स्पेशलिटी है, रजत के अंदर अलग स्पेशलिटी है। किसी को भगवान ने कंप्लीट नहीं बनाया, जानबूझ के इनकम्प्लीट बनाया, राइट? और अंग्रेज लोग बढ़िया बढ़िया फिर बुक लिख लेते हैं, and I love Brené Brown. So she's written a book, Gifts of Imperfection. बहुत न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रही है, and she talks about, उनकी talk I attended in one of my US visits. मैं ATD के events में, I'm a global speaker, I speak at various events. तो वहां पर ये she came as a keynote speaker. बहुत हंसाती हैं, बहुत इन्होंने रिसर्च करी है, बहुत she's worked on vulnerability, on shame, on courage, and she says कि imperfection is a good thing. Yeah. So that's the connection of this song, and that's the message I want to convey through this platform. Thank you, Amit. This talk has been very connecting, very inspiring, Thank and you. very interesting. You know, we had thought that this talk we'll spend around 30 minutes to 40 minutes. It's Yeah. like 1 घंटा It's होने वाला है, almost- लेकिन अभी भी बहुत मजा आ रहा है. You know, like we are feeling कि ये चलना, और भी बहुत सारी चीजें हैं. I'm sure I'm inviting. In case somebody has any question, please feel free. कुछ किसी को add करना है, feel free to say Yeah, something. बिल्कुल। Shantana, Dinesh, not कोई a गाना किसी question, को but याद आ रहा है? Yes, not a question, yes, but Ayush, I go ahead. wanted to add something. I've had Sure, Ayush, go ahead. multiple and hundreds of such conversations with Amit, because on the account of being his son, we've had so many of these wow. conversations. Wonderful. But I felt in this moment on this call, I felt I needed to be here right now. I needed to hear or be part of this conversation, even though I had so many of these. They reinforce these good messages. They reinforce that this is the way to live. And I'm so happy to be a part of this conversation right now and to hear such wisdom. And this is true for all of us, you know, in our lives, for us to pick up these messages and connect with each other. So firstly, I'm happy that, you know, Neela and you all, the team, have organized this, and happy to be a part of this conversation. Wow. Thank you, Ayush. Yes. So Ayush, thank you so much for your feedback. Anybody else has to add who has been connected with Amit and they want to share something about Amit? Something good, even something bad is okay. हाँ बिल्कुल, वही बोला ना, इम्परफेक्शन की बात कीजिए। Yes.
ठीक है, तो मैं भी आज इस शो को मिस कर रहा था। मिस क्या, मेरा दूसरा प्रोग्राम बन गया था, लेकिन लास्ट मिनट में वो कैंसिल हुआ। तो लेकिन अब मैं ये सोचा अच्छा हुआ वो कैंसिल हो गया, नहीं तो आज मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम सीधा आपसे सुनने को बहुत मिस करता है इसको। शायद ये भी है कि अच्छी बात है कि आज हम सुन रहे हैं डायरेक्ट आपको, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मिस करते। और जो बातें आपने कही है, कितनी बार ये सोच रहा हूँ, आज से मेरे को 20 साल पहले कोई सुना रहा होता है ये बात, शायद मैं आज और ज्यादा चेंज ले आ पाता, लेकिन फिर भी ट्राई है कि जो जहां से सवेरा अच्छा है। बिल्कुल। और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इनफैक्ट आपने गाना गाया वही मेरा पसंदीदा गीत है, और उसकी जो लाइनें हैं, जो उसको मैं वैसे कंटिन्यूस फॉलो करता हूँ, वो है गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। खुद में ज्यादा इतना गर्व महसूस मत करो, उसको झेलना भी सीखो, और गम में भी लेके मत बैठो कि गम हो, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहे दोनों। क्या बात। और इस मंच पर मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, सबको अपील करूंगा कि हमारे हिंदी गानों में इतना कुछ है। और अभी आज शाम को मैं चाय पीते हुए, सुजाता मेरी वाइफ के साथ हम चाय पी रहे थे, तो अमित कुमार जी का गाने सुन रहे थे, एंड आई वाज सेइंग कि वाओ, कितना अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं ये, और कितना अच्छा गाते हैं। और फिर धीरे धीरे किशोर जी का गाना आ गया कि पंथी हूं मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, राइट। तो इतने खूबसूरत हमारे पास मैसेजेस मिलते हैं, अगर हम ढूंढना चाहें इंस्पिरेशन, बहुत कुछ है हमारे पास। एंड म्यूजिक इज अ ब्यूटिफुल हीलर, इट्स अ ग्रेट हीलर, एंड इट्स अ ग्रेट comforter to people, and so I'm so proud of you, Anila, and the larger team कि आप लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो मैं कार की बात कर रहा था ना, उसके दो पहिए दोनों तरफ, तो उसको इंजन को नरिश करना भी तो चाहिए ना, उसको पेट्रोल भी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम गैराज में भी लेके जाना है। तो इस तरह की चीजों के साथ when you pick up some hobbies, when you attend such kind of programs, तो उस कार को आप नरिश कर रहे हो। तो so you are actually doing a lot of service, good service to the larger audience, के लाइफ को 9 और 5 के दायरे से थोड़ा आगे लेकर जाओ। लाइफ में और बहुत कुछ है, पैसा बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाओ, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी इज इम्पोर्टेंट, बट उसके लिए दिन रात वो गड़बड़ हो जाती है। क्या बात है। और अगर वो गड़बड़ होती है और आप उस गड़बड़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तो कमाना है, और उसके लिए अगर मेरे को अपने घर वालों को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे ही देने हैं, और आप उससे सेटिस्फाइड हो और यही वाला गाना गा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, यस। प्रॉब्लम वहां पर आती है कि मेरे को करोड़ों भी चाहिए, मुझे फैमिली भी चाहिए, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर केस में मिलेगा। सो यू हैव टू, मेरे एक बॉस बोलते थे, नो पेन नो गेन, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस। इवन फॉर अ फकीर, 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो फकीर को भी जब तक मेहनत नहीं करेगा, अच्छे से कपड़े नहीं पहनेगा, ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, तो लोग उसको भिक्षा भी नहीं देंगे। तो मेहनत तो करनी है, बट उसके लिए मरू नहीं करना। क्या बात। और जो मिस्टर प्रेम जी जैसे लोग, टाटाज, मिस्टर मूर्ति, ये लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं और फिर वेल्थ शेयर कर रहे हैं, लाखों करोड़ों जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, लेगेसी क्रिएट करो, राइट। इन्फोसिस की फाउंडेशन एक उन्होंने बनाई थी, अक्षय पात्रा, अभी तक वहां पर लाखों लोगों को फ्री खाना मिलता है सुबह शाम, वो अक्षय पात्रा कभी खाली होता ही नहीं है। क्या बात है, राइट।
So that is what the meaning of life is all about, right? Philanthropy करिए, create a legacy for yourself, गाने गाइए, अच्छा खाना बनाइए, घूमिए फिरिए, टोन बढ़िए तो उसको कम करने की कोशिश करिए, लेकिन उसकी वजह से गिर मत जाइए कि अरे दुनिया मेरे को क्या बोलेगी। दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो डरो मत, जो है सही है, जैसा शरीर है, जो आप अच्छा कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते आगे बढ़ो। क्या बात, जीवन तो छोटा सा है ना, एंजॉय करो उसको। तो एक गाना और हो जाए, एंजॉयमेंट की बातें शांतना, जल्दी से। ये शांतना एंड देन अमित विल स्टार्ट विद दैट जो हमने अपने शाम को प्रपोज किया था। ये शांतना, कुछ गाना हो जाए। Thank you, Anila. Good evening, Veranda. Welcome, sir. Such an inspiring talk shows going. I had to jump into the show. I was watching on FB, but I'm not well. Throat thoda gadbad hai. But what you said just now, इस पर एक गाना तो बनता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ला 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 ला, बातों में छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम की, तू कौन है, तेरा नाम क्या, सीता यहाँ बदनाम, फिर क्यों नहीं की बातों से भी गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Thank you. Beautiful. Having you, sir. Very nice. आपका गला ठीक नहीं है तो अब आप इतना खूबसूरत गाती हैं, जब ठीक होता है तो क्या सब। Amit, I would just like to share a little about Shantana. She's the joy ambassador of Music Veranda. She is always happy. She is always very proud of herself. She's a home chef and she's a veteran of Music Veranda. Thank you, Shantana. And I would also like to introduce you to Gaurav Jain. कहीं से disturbance आ रहा है, please mute कर ले. Shantana, mute yourself. Yes, thank you. So we have Gaurav Jain, Gaurav Jain and Gaurav. We started this Music Veranda. So he's like, he's an entrepreneur. He's very well connected, you know. और ये Music Veranda को जो मस्ती वाला laugh वाला portion है, that GJ covers, you know. वाह. So, you have all our ears, please. Yes. GJ, you can say hi to Amit. मैं किसी को हाय नहीं देता, मैं हेलो बोलूंगा. वेलकम. चलिए, बहुत बढ़िया. किसी को हाय नहीं देता, हेलो करता हूँ. सर मैं हाय लेता भी नहीं हूँ किसी की, मैं हमेशा टोकता हूँ उनको, किसी को हाय मत दिया करो, ना हाय लिया करो. आजकल क्या हो गया ना कि हम लोग जैसे किसी का नंबर सेव करना हो, लोग बोलते हैं यार तू अपनी हाय भेज दे, मैं सेव कर लेता हूँ. अरे भैया हाथ जुड़वा लो, हेलो. और हम लोग तो जनी लोग हैं, हम तो कहते हैं हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए या जय जिनेंद्र बोलिए. So it's all the way how you know spell the word or just listen to the word. Somehow subconsciously कई जगह वो चीजें होती हैं और लोग बोलते हैं बातों में कुछ नहीं रखा, लेकिन बातों में बहुत कुछ रखा होता है. तो कई बार क्या होता है ना, जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो एक चीज है, जो बातें नहीं कर रहे वो बहुत सारी चीजें हैं और नहीं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. तो शांतना अभी गा रही थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो वाला वो वर्ड भूल गई, छोड़ो बेकार की बातों को, वो छोड़ नहीं पा रही, ऐसा मुझे लगा. But thank you so much for coming and gracing you know Music Veranda. And I'll be honest, मैंने बस अभी ज्वाइन किया है and I was listening to you, making lot of sense. कई बार क्या होता है ना कि सर हमारे अंदर सब कुछ चीजें हैं, पता होता है क्या करना है,
but sometimes we need a direction again. वो GPS सबको होता है ना सर, चाहिए। कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हमें पता है कि रास्ता भी पता है, लेकिन कहते हैं कि यार ठीक है, इसको पूछते हैं कुछ हो सकता है इंटरेस्टिंग नहीं, पता लगे। सबको मेंटोर्स की जरूरत है गौरव, जी। सबको कोचेस। मिस्टर नारायण मूर्ति के पास कोच है, प्रेसिडेंट ओबामा के पास कोच है। एवरीबडी नीड्स सम हेल्प। किसी को स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, किसी को हेल्थ की हेल्प चाहिए, किसी को बिजनेस की हेल्प चाहिए। एंड कोई कहता है कोई मेरी हेल्प ले ले, इतना टाइम हो गया, इतना एक्सपीरियंस है, मैं क्या करूं इस सब चीजों का। तो वो डाई एम्प्टी वाली भी कहानी अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बुक्स लिखें, ताकि कुछ तो करें, लेगेसी जाएगी कुछ ना और कुछ। हम तो इनवाइट करते हैं, like if you want to share, if you have a message, please, Music Veranda is the platform. It's an unconditional platform. So, and everybody has some message, some story, some learning. So that's what we want Music Veranda be used for. So Amit, now let's move towards the end part, where I would like to have some messages of yours, some quick messages, which how we can relate it with songs. Let's see. Yes. So you can share the message and the song, if somebody can sing for us. Yes. Okay. तो आज मैं दोबारा इस बुक को देख रहा था, बिकॉज इस बुक ने काफी मेरे को इम्पैक्ट किया। तो एज एन ऑथर हम खाली अपनी बुक के बारे में नहीं हमें बोलना चाहिए, और लर्निंग्स के बारे में भी। तो ब्रेने ब्राउन की जो गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन है, तो उसमें सबसे पहले तो वो बोल रही हैं कि कल्टीवेट योर ऑथेंटिसिटी, राइट? ओके, या लेटिंग गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। तो उसका तो जवाब शांतना ने दे दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, राइट? सो तो ये गाना अप्रोप्रिएट है। सेकंड मैसेज शी सेज इज कल्टीवेट सेल्फ कंपैशन, लेट गो। ओके, या आई थिंक जैन धर्म में भी इसका काफी इसके बारे में बोला जाता है। तो लेट गो का वही हो गया ना। इसके लिए मैंने एक कौन सा गाना, हाँ, वो शान का एक सॉन्ग था, भूल जा जो हुआ वो भूल जा। आई डोंट रिमेम्बर उसके वर्ड्स, बट काफी सारे हैं। हाँ, मेट्रो फिल्म का सॉन्ग था, तो मैं लिखता जा रहा था, है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। Yes, okay, that's a beautiful song. Yeah. Can anybody sing for us? Shantana, you can. Shantana, you can remove this. ये ना तार निकाल दो, बहुत बोर है Yeah. बादल कर रहे हैं। आप ये तार निकाल दो शांतना, तार जुड़े हुए हैं सबके, आप निकाल दीजिए, बिना उसके चलेगा। ये शांतना, इन दिनों lovely. दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू जी ले जरा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे सेल्फ लव बहुत जरूरी है। कर ले तू भी मोहब्बत, इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, ब्यूटीफुल। जी ले जरा, तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। थैंक यू। Beautiful, very nice, very nice. शांतना तू पी ले जरा, है तुझे भी जरा, तू पी ले जरा, पानी पानी, खांसी हो रही है। So Amit, which is the next message that we have? हाँ, next message है कि cultivate a resilient spirit. So let go of numbing, let go of powerlessness. आपके पास सब पावर है, that's what she said. तो उसके लिए मैंने गाना जो मेरे दिमाग में है कि रुक जाना नहीं कहीं तू, क्या बात है, हार के ओ राही, right? Resilience वाला सॉन्ग है। दिनेश जी can sing one line or two line. हाँ, एक लाइन गाते हैं, otherwise एक लाइन। साथी न कारवां है
ये तेरा इम्तिहान है, तू ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही Beautiful. ओ राही रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू। Amazing. Yes. So Amit, this is Let Go. Yeah. चलते जाना है, right? Next. बिल्कुल। Yes. Next. अच्छा नेक्स्ट, अच्छा मुझे लगा कि समय है हमारे पास नेक्स्ट के लिए। हाँ सर, समय तो बहुत है, एक्सटेंड भी कर देते हैं हम। अच्छा Another 2 minutes or so. Yes. हाँ, तो एक एक लाइन मैं सबकी बोलता हूँ ताकि मैसेज रह जाए। Yes. फिर Yes. हमें समय होगा तो गाते हैं। तो मैसेज, आई थिंक सब लवर्स हैं, म्यूजिक लवर जल्दी से मैसेज लेंगे। तो एक, then she says cultivate gratitude, Yes. right? Let go, joy, scarcity नहीं है, abundance है हमारे चारों तरफ। तो इसके लिए गाना आता है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, right? Gratitude, फिर cultivate intuition and trusting and faith, लोगों में ट्रस्ट करो, इंट्यूशन पे जाओ, हर चीज का जो है मापदंड मत करो, आपके दिल में क्या आवाज आ रही है उसको भी समझो, इंट्यूशन को। तो इंट्यूशन के लिए मेरे को कैलाश खेर का गाना ध्यान आया, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होगा कल फिर आएगा। और लेटिंग गो, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी एंड लेटिंग गो, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा गाना बनेगा लेटिंग गो के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर कोई है गाना तो बताइए, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सोचिए इसके बारे में। फिर कल्टिवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, तो उसमें है कि कबीरा जो सॉन्ग है ना, एक कबीरा मान जा, तो उसमें ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, फिर दूध की मलाई मिट्टी की सुराई। सो बेसिकली फाइंड जॉय इन सिंपलर थिंग्स, बहुत कुछ है हमारी लाइफ में आगे। सो प्ले और रेस्ट दोनों जरूरी है, चारपाई की जरूरी है, चाहे टूटी हुई चारपाई हो, पंछी आके चारपाई पे अपने घोंसले में ही एंजॉय करता है, राइट? तो एग्जॉस्ट भी हो, थको भी, जब थकोगे तभी एंजॉय करोगे अपनी नींद को। कल्टिवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, तो उसके लिए मैंने गाया वो मैं जिंदगी का साथ निभाता रहा। एंड फाइनली शी सेज, दो और हैं, कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क एंड लेटिंग ऑफ सेल्फ डाउट मत रखो। तो सदमा का बहुत अच्छा गाना है ना, ए जिंदगी गले लगा ले, राइट? तो वो इस गाने को काफी हमने भी तो तुम्हें गले लगाया है। एंड फाइनली कल्टिवेट लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, एंड ऑलवेज इन कंट्रोल वाला नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो रंग दे बसंती का वो है ना, क्रूज कंट्रोल तो उन्होंने उसको तो अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, राइट? सो लाइफ को इतना भी टाइट नहीं करना चाहिए, राइट? जो हमारी धरती बनी थी ब्लास्ट से बनी थी, राइट? काफी मॉलिक्यूल्स, कहीं पे गड्ढे हो गए, कहीं पे वाटरफॉल्स हो गई, कहीं पर तारामंडल छा गया। लाइफ को, हर चीज को फॉर्मूलाज में मत लेकर आओ, राइट? जहां पर काम आते हैं फॉर्मूला वहां पर यूज करो, हर जगह फोर्स फिट मत करो, दैट्स द मैसेज। तो गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, आई थिंक दैट्स, मैं ब्रेने ब्राउन को लिखूंगा कि मैंने आपकी बुक से गाने बनाए हम सब ने, and I think maybe she'll write back. This is so interesting. Okay, so Amit, just to add on to that, जो लास्ट में आपने बोला ना, तो उसमें वो वाला गाना भी सही बैठता है अमित जी, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों के करके गोल ऑल इज वेल। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ, तो वो हम लोग होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल, जो आपने लास्ट में बोला, उसने हम बस बोल दो यार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो गाना बड़ा लेकिन मैं एक और चीज लास्ट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि कहना आसान है जी, ऑल इज वेल। हाँ, सब अभी आपको लग रहा होगा, हाँ अमित आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आप किसी के अंदर घुस के देखो ना, अरे वो जू में
जू में बतख कितनी अच्छी लगती है, सुंदर पानी में, उसके नीचे कैसे वो पेडल कर रही है वो कोई नहीं देखता, नीचे घूमने की कोशिश नहीं करता। तो मैं दर्शकों को ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बॉस सब कुछ अच्छा नहीं है, राइट, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मेरे भी वीक मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, राइट, कोई भी परफेक्ट नहीं है लाइफ में, ठीक है ना, तो उसको एम्ब्रेस करो, राइट, दैट इज माय मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता कि बॉस एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट, और सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है, राइट। शाहरुख खान को पूछो कितनी सर्जरीज कराई हैं, वो कहता है मुझसे पूछो तो सही कितने मैं पेन किलर्स खाता हूं दिन में। हाँ, लोग सिर्फ बोलते हैं कि मूवी बेकार थी, अच्छी थी, राइट, सो एवरीबडी हैज टू गो। अब देखिए ना, अनिला हाथ टूटा हुआ है तब भी शहनशाह वाला, राइट, शहनशाह वाला हाथ दिखा दो ना अपना। शहनशाह बना दिया आपको। despite the pain and the but ये इनका वर्ड है, ये कल बात it is कर a रहे passion. It is a passion, Amit ji. It is a passion. So, Lovely. It is driving. right. तो राखो। Thank you very much. I would request everyone to unmute themselves and give a round of applause to Amit for his time, for his valuable time, for his valuable insight. Yay. Pleasure. ये शो Thank you for having me. यस, ये शो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो हमने सोचा ही था, सो वी न्यू इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वी न्यू इट्स गोइंग टू बी रियली अब्सॉर्बिंग। एंड अमित, यस, अकेले नहीं हुआ ये, अकेले नहीं हुआ ये, ऑर्गेनिक तरीके से हुआ। मीना ने कंट्रीब्यूट किया, दिनेश ने कंट्रीब्यूट किया, सब ने मिलकर, तो शांतना ने किया, गौरव ने अपना उसमें म्यूजिक, अपनी हंसी लेकर आए, अपना व्यू पॉइंट लेकर आए, तो ये सिम्फनी सब लोगों से मिलकर ही म्यूजिक बनता है। कि कोई तबला अच्छा बजाता है, कोई म्यूजिक अच्छा बजाता है, तो म्यूजिक, तो ये मैं श्रेय नहीं लेना चाहूंगा अपने ऊपर, सबने मिलके इसको एंजॉयबल बनाया। Very nice. Thank you. Thank you. अनिला, yes. हाँ मैंने आपको थोड़ा सा ही सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक मैं गौरव सा बोलती हूँ कि मैं भी राम राम राधे राधे बोल रहा हूँ उसको। वो कह रहा था ना हाय हेलो मत बोलो। और एक गाना मैं भी गाती हूँ। अमित, शी इज माय मॉम। मम्मी, अमित मेरे साथ सेंट जॉर्जेस में था, आगरा में, क्लासमेट। हाँ, आप गाइए मम्मी। बहुत अच्छा लगा आपकी, गाइए माँ। हाँ, अच्छा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। थैंक यू। वाह वाह, इसको कहते हैं ना, मिठाई के ऊपर केसर जब लग जाता है ना, कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो बुजुर्गों का जो ये लोग, क्या बोलूं मैं, कल्प वृक्ष है, हमारे कल्प वृक्ष है, इनके अंदर, इनके छत्र छाया में हम लोग फलते फूलते हैं। तो आंटी आपने केसर डाल दिया मिठाई के ऊपर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे ही ध्यान आ गया गाना तो मैंने। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। अमित जी, आप एक गाना रह गया था ना, लेट गो वाला, वो भी हम शांतना ने कंप्लीट कर दिया, उसने चैट पे लिखा हुआ है। अच्छा? आपने जो आपने पूरा 8-10 पॉइंट्स बोले ना, एक पॉइंट आप रह गए थे, आपने कहा था कि गौरव इसका मतलब गाना नहीं मिल पा रहा, लेट गो वाला। तो शी हैज मेंशन्ड ऑन द चैट लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी, यस आई सॉ दैट। नहीं, मैं मतलब क्रिएटिविटी वाला कि वन हैज टू बी वेरी क्रिएटिव, उसके लिए नहीं मेरे को कुछ मिल पाया। अच्छा, ओके, खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे। हाँ, तो क्रिएटिविटी हो गई ना, खोलो दरवाजे। ओह यस, वाओ, थैंक यू आयुष। थैंक्स आयुष। अच्छा, आयुष ने लिखा। आयुष, आप भी गाइए कुछ। I'll try, मेरी आवाज गाने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, प्लीज सिंग समथिंग, एनीथिंग। खोलो दरवाजे, पर्दों कर किनारे, खोटी सी बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। ये गिटार अच्छा बजाता है एक्चुअली, गाता
आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमने है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को सरा पहचान तू, तू धूप है छम से बेघर, तू तू है है नदी ओ ओ बेखबर, बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो तो मंजिल मंजिल है है वही। वो क्या बात है, बहुत सुपर प्यारा। फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Fantastic. Ayush, please, Yes. we would like to invite you for a talk show at Music नहीं, और Veranda. गिटार अच्छी बजाता है, गिटार अच्छी बजाता है इसका। I don't know how Definitely. audible my guitar would have been on Zoom. That's why I didn't open it up. But hopefully some other time, maybe in the next one. Yes. So Amit, Music Veranda is your platform. Whenever you feel like sharing to the bigger world, please feel नहीं, we free. must. And हमारे परिवार में बहुत सिंगर्स हैं, क्षितिज है, जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा गाता है। सक्षम मेरा भतीजा बहुत अच्छा गाता है। वो अभी आज भी सबको सुन इनवाइट सकते हैं करते हम लोग। हैं। आज नहीं, इनको स्पेशल अलग से बुलाएंगे, अलग से। Sure, क्या sure. रजत है Thank क्या? you. सक्षम है क्या, बोलना चाहेगा? नहीं, मैं उसकी जगह गाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। ये सक्षम हुई के ना पिताजी। बात। Please go ahead. Anila, thank you very much for inviting us. अमित, आपके लिए एक लाइन। Sure, please. Thank you so much. Go ahead. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के आए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहल तो, ये शाम ढल तो ले जरा, क्या बात है। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल मचल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं। Thank you very much. वाह वाह। Lovely, मजा आ गया। मेरे को आज तक इसका टैलेंट नहीं पता। हाँ, और अनिला, थैंक यू टू यू फॉर गौरव, एवरीवन हु इज क्रिएटेड। सबके उभर रहे टैलेंट्स। बहुत बढ़िया। Actually, so that's what music. We don't believe in competition. We just believe in participation. Everybody should participate. Everybody should talk. Everybody should sing. You know, it's an unconditional platform. Every evening we meet from 9 to 10 p.m. IST, and people from all across the world, they join this platform. So thank you so much. और सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग Zoom पे जुड़े हैं, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं और जो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखेंगे। I'm sure this recording is going to help a lot of people. Thank you once again, Amit. Keep coming to Music Veranda. Keep inspiring. Keep writing books. Keep doing what you are doing. और सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, you know, to take out time to watch these programs is also a very big learning. So great going. All the best. Thank you. This is Anila Rampuria signing off from Music Veranda. और हम जैसे कि प्रोग्राम शुरू करते हैं गाने से, हम अंत भी करते हैं गाने से, क्योंकि ये है म्यूजिक वरांडा। सो नीना से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नीना आप कुछ गाएं और हम उसके बाद
नीना गाती रहेगी और हम प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे, तो जिसको बाय बोलना है प्लीज अभी बोल दीजिए। अमित, एनीथिंग बाय बोलना है आपको तो बोल दीजिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Sorry for just going for a few minutes. Yeah, no, it's Okay. no, it's okay. Yes. Okay. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन ला 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 छोटे सहिया, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना भी तो जाने, जाने दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन ला 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 छोटे सहिया, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। Thank you everyone. Good night. Thank you.